going to speak to some of the officials who have arrived over here. सर क्या बताएंगे इस पूरे What actually led to the incident? We are going to speak to the officials who have arrived over here and who is moving towards the spot. Could you please tell me what actually led to the incident? We are just asking one simple question. What actually led to the incident? You will have to answer. सर आप क्या बताएंगे इस पूरे मामले के बारे में आप मौका है Mr. Officer, you will have to answer my question. You will have to take Republic Media Network's question. What actually led to the incident? Why were there were no proper arrangement at that time? Already senior officers have given bite. था इसमें अभी हम bite नहीं देंगे. Let me just look after the arrangements, है ना? I'll just call. Why were not there proper arrangements at that time when the incident took place? Mr. Officer, you will have to answer my question. You have to take. Could you please allow me to just ask? I'm just asking one simple question. Please allow me to ask just one simple question. I'm just doing my work. I'm just asking one question. Please allow me to ask one simple question. I'm just asking about the proper arrangements. Why arrangements were not being made properly when the incident took place? So here you see, we have been trying to speak to the official over here at that point of time, but he's not ready to speak right now. As he's saying and he's suggesting that the investigation in all, and we are over here to probe the entire incident. What actually led to the probe? The exact number of people who were present at that congregation is not known, ladies and gentlemen. Runs into thousands and thousands of them. The official number of the casualties, the number of people whose lives have now been lost, that number is at 121. Many families continue to search for their loved ones. And we spoke to some of the families still searching for their loved ones amid the pile of bodies that were witnessed in Hathras last evening. One such story of Ram Sharan. We spoke to Ram Sharan, whose father traveled all the way from Hardoi in Uttar Pradesh, is not to be found. Here's his story. मैं बस यही चाहूँगा कि पुलिस वाले को आपको बोलना चाहिए कि आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर रहे आपके पिताजी को ढूंढने में। वो क्या मदद कर रहे हैं? वो कह रहे हैं खुद जाइए ढूंढिए। हाँ जी। वो बोले एटा जाइए, हाथरस जाइए, अलीगढ़ जाइए। हॉस्पिटल जाइए वहाँ। मैं चाहूँगा एक बार अपने पिताजी की फिर से फोटो दिखाइए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कम से कम आपके पिताजी को मतलब हम लोग ढूंढ सके। So it is important to note that आपके पिताजी का नाम आपके पिताजी का नाम आपके आधार कार्ड भी दिखाइए जरा। नाम हमारा रामचरण है, पिता का नाम चंद्रिका प्रसाद प्रजापति। ये बता रहा है एड्रेस। अच्छा, और आप हरदोई से है तो आपके पिताजी मतलब और उनके कुछ दोस्त यहाँ पे आए थे गुरुजी से? काफी लोग आए थे, 14 बजे थी वो जा चुके हैं। कितने लोग आए थे तकरीबन? बहुत लोग, लगभग 150-200 आदमी हरदोई से जी। अच्छा, तो अभी आपने कोई मतलब FIR दर्ज कराई है अपने पिताजी को ढूंढने के लिए? पुलिस वालों से बात किया तो बोले पहले पता लगाइए अलीगढ़, हाथरस, एटा जाइए, उसके बाद और कोई मदद नहीं करें। Joined by one of the eyewitnesses over here who have seen the entire incident. अच्छा मुझे ये बताइए, दुर्घटना जो हुई उस वक्त किस तरीके से घटी? यहाँ पर यूटर्न है, ये यूटर्न के पब्लिक यहाँ से काफ़ी मात्रा में निकली। यहाँ चारों तरफ वाहनों का जमावड़ा था, काफ़ी वाहन रुके हुए थे, इधर भी उधर भी रॉन्ग टाइप भी वाहन रुके हुए थे। पब्लिक ने पीछे से जो प्रेशर मारा पब्लिक यहाँ गिरी खाई में, पीछे से लोग चढ़ते गए, भगदड़ के सुनते हुए लोगों में एकदम आपस में मतभेद पैदा होने। ये कोई खाई तो नहीं है, तो समतल सी जमीन है। अगर देखा जाए, मैं अपने वीडियो को रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे की तरफ बढ़कर आपको दिखाएं जरा। ये जो एरिया है यहाँ पे लोगों की तादाद कितनी थी? वहाँ पर लोगों की तादाद कितनी थी? लोगों का यहाँ निकलना था कम से कम मैक्सिमम, बहुत देर से लोग निकल रहे थे। लोग मैक्सिमम कम से कम 3 से 4 लाख लोग मिनिमम होंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे लोग कितने दिनों से इकट्ठा हो रहे थे सत्संग के लिए? 15 दिन से ये चल रहा था आयोजन का कार्यक्रम। 10 दिन से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि 10 दिनों से लोग इकट्ठा हो रहे थे और कल फाइनल था, मतलब जो मेन इवेंट होता है सत्संग का वो कल था? हाँ, कल था, कल ही था। कल होने के बाद जैसे बाबा जी निकले उसके 40 से 45 मिनट बाद ये हादसा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बाबा यहाँ पर किस वक्त आए? जो कार्यक्रम का आयोजन था सुबह में बाबा 12 बजे बाबा की यहाँ एंट्री हो गई है और 1 बजे बाबा यहाँ से निकल चुके हैं। बाबा की कैवलकेड में कितने लोग थे? कितनी गाड़ियाँ थी? बाबा के काफिले में मैक्सिमम कम से कम 10 से 15 गाड़ी थी।
बाजू बाबा की खुद की। और ये सब समाप्त कितने बजे हुआ सत्संग? 1 बजे के लमसम समाप्त हो गया। 1 बजे जैसे ही ये समाप्त होता है तो जैसा कि आप मुझे दिखाइए यहाँ पर इवेंट जो है वो खत्म होता है। बाबा की गाड़ी किस तरफ से निकलती है? सामने सीधे से निकलती है या दाएं से निकलती है? बाबा की गाड़ी इधर से निकली, ये एंट्री थी बाबा की। अच्छा, वो वहाँ एंट्री से है, लेकर के यूटर्न। हाँ रास्ते से हाँ हाँ हाँ। उसके बाद यहाँ पे लोग पहले खड़े थे सड़क पे। हाँ, सड़क पे खड़े हुए थे और पब्लिक वहाँ से एंट्री, जब बाबा निकल गए तो आने का काम चालू हो गया। पब्लिक अपने घर पे जाने के लिए तैयारी हुई, उसी हिसाब से यूटर्न पे सारी पब्लिक यहीं इकट्ठा हो गई। दोनों तरफ ट्रक लगे हुए थे, पब्लिक ने पीछे से प्रेशर मारा, पब्लिक यहाँ पे गिरी, भगदड़ से दब गए लोग, पीछे से मशीन वगैरह आती, पानी वानी का छिड़काव सा हुआ, इससे और लोग भयभीत हो गए। ये जरा सिलसिला बताएं, इसमें आप कह रहे हैं पानी का छिड़काव हुआ, क्यों पानी का छिड़काव क्यों हुआ? पता नहीं अब क्यों हुआ, मशीन खड़ी हुई थी एक पानी वाली। नहीं, आप कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की मशीन खड़ी हुई खड़ी थी वहाँ पर, उसके लिए पब्लिक पे पानी या तो उसके लिए करा होगा, गर्मी होगा से इस वजह से किया है, मगर यहाँ फिसलन से भी लोग बहुत दबे। नहीं, भीड़ थी यहाँ पे, लंबे बड़े तादाद में भीड़ थी। उसके बाद क्या हुआ? एम्बुलेंस थी यहाँ पे? कोई एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं थी, कोई एक भी एम्बुलेंस नहीं? कोई एक भी एम्बुलेंस नहीं थी कहीं पर भी। खाली पुलिस प्रशासन था, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी यहाँ, SHO वगैरह यहाँ खड़े हुए थे मात्र, और कहीं कोई पुलिस प्रशासन ज्यादा मात्रा में नहीं था। अच्छा, इसके अलावा लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पानी जो है की बौछार की, पब्लिक पे बौछार क्यों किया? उसका रीजन क्या? ये तो उनको जानकारी होना चाहिए, हमें तो इस चीज जानकारी नहीं है। तो उसकी वजह से लोग भागे, क्या हुआ? वो उससे भगदड़ और ज्यादा पड़ी, जब पानी डाला तो उससे भगदड़ और ज्यादा पड़ने लगी, इस वजह से फिर लोग एकदम दबने लगे। तो उसके बाद ये जो गीला एरिया देख रहा हूँ, ये उस वजह से है क्या? नहीं, यहाँ तो रात बारिश हुई है, ठीक है, रात हुई है, और कल भी था यहाँ पानी भरा हुआ था पहले से खेत में। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए, चढ़ते चले, फिर तो पब्लिक दबती गई, और यहाँ पर फिर तो कोई भगदड़ पड़ गई, फिर तो अपने अपने को भागने लगे, फिर किसी ने कोई कुछ देखा।